अलग अलग तो करप्शन नहीं करते, मिलके करप्शन करते हैं। तो एक ही केस को लोकपाल भी इन्वेस्टिगेट करेगा और तो दे वांट टू बेसिकली स्कटल ऑल द इंक्वायरीज। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर टू एजेंसीज टू इन्वेस्टिगेट द सेम केस। दूसरा, सरकार लोकपाल को भी एडवाइजरी बॉडी बना रही है। तो आप ये सोच के देखिए कि कल को अगर लोकपाल मान लीजिए होता और अगर लोकपाल ये कहता प्राइम मिनिस्टर को कि आपके मिस्टर राजा ने करप्शन किया है, इसके खिलाफ मुकदमा चलाइए, आपको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर मुकदमा चला सकता था? वुड ही हैव द करेज टू डू दैट इन अ कोलिशन गवर्नमेंट? ही विल नेवर डू दैट। सो लोकपाल इज अगेन बीइंग मेड एन एडवाइजरी बॉडी बाय द गवर्नमेंट, व्हिच डजंट मेक सेंस। Then the government is not giving whistleblower protection to the लोकपाल। सरकारी बिल में यह लिखा है कि लोकपाल will again be appointed by the politicians। We don't want the politicians to appoint लोकपाल। हमने जो कहा है, हमने कहा है कि the two senior most judges of the Supreme Court, two senior most chief justices of high courts, and the people who got Padma Vibhushan award last year, this should form the selection committee, and they should find the right kind of people from across the country, and they should be appointed as लोकपाल। सरकारी बिल जो है, इट इज साइलेंट ऑन इंटरनल ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ऑफ लोकपाल। तो लोकपाल विल सर्टेनली बिकम अ हब ऑफ करप्शन। एंड लास्ट इज द गवर्नमेंट बिल इज साइलेंट ऑन द रिकवरी ऑफ द लॉस दैट विल टेक प्लेस टू द गवर्नमेंट। So this is the bill that we are presenting to the government today. We are very grateful to Shri Ravi Shankar ji that he has supported this movement. Show the signature. With all the signatures of the people. He has just now signed this letter. With his signatures, with everyone's signatures. This is signed by all of us present here. Everybody signed this. Everyone has signed this. And a copy of this will be given to the media. A copy of this letter, one letter is going to the Prime Minister requesting कि आप लोकपाल bill enact कीजिए। दूसरा, a letter is going to the Chief Justice of India requesting that as an open letter that several cases are going on in Supreme Court. Please unshackle CBI from the clutches of the government. The third letter is going to all the chief ministers of the country, requesting them that central government पता नहीं करे या ना करे, आप अपने स्टेट में तो इन लाइंस के ऊपर लोकायुक्त एक्ट लेके आइए। Let us see which chief minister takes the lead in this particular case. These are the letters which are there. We have already given you a press release and a copy of one of these letters. The media did not understand that corruption is crime. उन्होंने crime और corruption को crime नहीं हम समझते. We don't, because white collar crime has never been in our head. I think we need to understand that the investigation of white collar crime is the least investigated crime in this country. So crime under 420 or 406, which is breach of trust, pays. In India, corruption pays, because the investigating agencies of 420 or white collar crime is the weakest link in the entire Indian policing is excellent for pickpocketers, small burglars, but not for major 420. उसका रीजन ये भी है कि डॉक्यूमेंट्स जो कि फोर्ज कई बारी डॉक्यूमेंट्स या अदर्स है, उसके लिए फोरेंसिक जब तक वो इन्वेस्टिगेशन करके जवाब देती है उसको सालों लग जाते हैं. सो फ्रेंड्स, इन लास्ट 60 years plus in India, white collar crime has been least attended to, least investigated, and the cheats know that they can walk away with it and crime is paid. That's why it multiplied as economy got liberalized. You've seen a graph that the crime cost has also, the crime money which has been embezzled, etc., has also shown a higher graph. So the more the money, more the crime, and least investigated, least in fact recovered, and least prosecuted, and least punished. If you file an RTI, find out how many people have got convicted under 420, it may become a shocking figure. I thought I would just add that little bit as a from my policing experience, that 420 crime is the least investigated and least prosecuted. Now it's all yours. Let's begin with Sri's blessings. If you had taken a look at the Hindustan Times this morning, just before coming, I saw the High Court has said here, corruption is a way of life, is an accepted way of life. This is the most shocking thing this country can ever face. If we can accept corruption as our way of life and carry on with this, we are cheating ourselves and cheating millions of people of this country. I should really congratulate Arvind, who has been successful in bringing RTI. Now he has taken up this lead, and Kiran Bedi and Anna Hazare ji, all of us.
This is the high time. If it's now or never, our people are burning. In fact, we should, first of all, I would like to thank those who exposed those tapes in the medium. They should get Bharat Ratna. They woke up the people. And it is shocking to see even some media personalities were involved in all these scams. And I congratulate, on the other hand, media who could come up and expose this whole issue of 2G scam, and that has put the, hit the nail on the cough. So it's a high time we wake up. The people are so distressed and there is so much anguish in people to see some big transformation. And as Arvind just mentioned, like Hong Kong, what they have done, and it's high time for India to take that role. अब हमारे देश में एक जनता में जागृति आएगी, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे इस तरह का. बहुत हो गया बर्दाश्त करते करते करते. अब अन्ना हजारे जी ने काफी एक प्रयत्न किया महाराष्ट्र में इसी मॉडल पर, जगह जगह सब लोग तैयारी करने के लिए, मगर कानून की जरूरत थी, एक ऐसी सख्त कानून की जरूरत थी. उसका एक प्लेटफॉर्म आज बन गया है. आज आप सब लोग मिलकर के उसके लिए एक नया दिशा निर्देश, ऐसा नहीं कि सिर्फ उंगली दिखा के सरकार को, किसी को कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, मगर एक सुझाव दे रहे हैं, ऐसे एक सॉलिड सुझाव जिससे हमारा देश और चमकेगा, हमारा देश मजबूत हो सकती है और एक ईमानदार देश के तौर पे आगे निकल के आ सकती है. इसके लिए ये जो काम आज शुरू हुआ है, एक बड़ा मूवमेंट की तरफ से शुरू हुआ है. जैसे आपने बताया किरण बेदी जी ने, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इसके लिए सब लोग जुट के ये काम करेंगे. अब आगे अन्ना हजारे जी बताएंगे इनका. परम पूज्य रविशंकर जी, किरण बेदी जी, अग्निवेश जी, अरविंद केजरीवाल, सभी आदरणीय व्यासपीठ, मेरे सामने में बैठे हुए भाई बहन, भ्रष्टाचार के बारे में मैं 25 साल से लड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था. लड़ाई तो जारी थी. 6 कैबिनेट मिनिस्टर घर में चले गए, करप्टेड लोग. 400 से ज़्यादा ऑफिसर घर में चले गए, करप्टेड लोग. लेकिन मुझे सही रास्ता नहीं मिल रहा था. क्या मिनिस्टर घर में जाके क्या करप्शन बंद हुआ है? वो कम नहीं हुआ. अभी मुझे रास्ता मिल गया. आज देश स्तर पर जो एक संगठन बनाकर हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लोकपाल बिल. आज हमारे देश में करप्शन को रोकने वाली कोई सिस्टम ही नहीं है. जो सिस्टम है वो हमारे देश में सीबीआई. अभी इतने बड़े बड़े घोटाले बाहर आ गए तो सरकार ने क्या किया, कमेटी बनाई सीबीआई. और लोगों को लगता है कि भाई सीबीआई बहुत बड़ा असर डालने वाली ये संस्था है. बताए ना, सीबीआई ने आज तक इतने बड़े बड़े घोटाले सीबीआई ने जांच की है. कोई मिनिस्टर जेल में गया? कोई आईएएस ऑफिसर जेल में गया? तो सीबीआई से ये काम नहीं होगा. इसीलिए सीबीआई को गवर्नमेंट से बाहर निकालना है. सीबीआई गवर्नमेंट के अंडर नहीं होना चाहिए. इसलिए अभी ये जो लोकपाल बिल आ रहा है कि विजिलेंस कमेटी, सीबीआई, ये सब गवर्नमेंट के अंडर से निकालना और अलग उसकी संस्था बनानी है, वो है लोकपाल बिल. और लोकपाल बिल ये स्वतंत्र रहेगा. गवर्नमेंट का कोई इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा. उल्टा गवर्नमेंट पर उनका कंट्रोल होगा. अभी ये जो सिस्टम जब बनने जा रही है, मुझे यकीन है और मुझे विश्वास है, ये सीबीआई अगर बन जाए और कुछ मिनिस्टर, कोई आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर जेल में जाने लगे तो दिमाग जगह पर आ जाएगा करप्टेड लोगों का. ये जेल में जब तक नहीं जाते तब तक इसका असर नहीं होगा. लेकिन ज़रूरत है देश की जनता के संगठन की. सरकार करेगी,
सरकार नहीं करेगी, लोकपाल बिल सरकार नहीं करेगी, आसानी से नहीं करेगी। सरकार सिर्फ एक ही बात के लिए डरती है, जनता जो कह रही है ये हम नहीं किया तो हमारी सरकार गिर जाएगी, गिरने के लिए डरती है। और जनता ने सरकार गिराने की शक्ति निर्माण करनी है। असंभव नहीं है, संभव है। हम सब जनता, भारत की जनता संगठित हो गई और आज़ादी की दूसरी लड़ाई समझकर लड़ने लगे तो जरूर सरकार को सोचना पड़ेगा और लोकपाल बिल बनाना पड़ेगा। मैं तो आज हमारे पूज्य रविशंकर जी और किरण बेदी जी सब बैठे हैं, ये सिर्फ भाषण नहीं है, ये भाषण नहीं, अभी ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई शुरू हो गई और उसकी शुरुआत ये दिल्ली से हो रही है, वो गली तक जाना है। और मैं आज हमारे रविशंकर जी, किरण बेदी, अग्निवेश जी बैठे हैं, इसी सप्ताह से महाराष्ट्र में एक दिन गैप नहीं होता, गैप ना देते हुए पूरे महाराष्ट्र में लोगों को जगाने का प्रयास मैं इसी सप्ताह से शुरू करने जा रहा हूं। और इस लड़ाई का हम नमूना दिखाएंगे, लोकपाल बिल महाराष्ट्र से नमूना दिखाएंगे, क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन पहले महाराष्ट्र में शुरू किया। 1995 पहले लड़ाई शुरू हो गई, 2003 में महाराष्ट्र में राइट टू इंफॉर्मेशन का कानून बन गया। 10 साल लड़ते रहे उसके लिए, 10 साल तक, और आज वो पूरे देश में शुरू हो गया। तो मुझे विश्वास है, मुझे इतना दिक्कत नहीं लगता, हम सिर्फ जनता को खड़ा करना है। और मुझे यही बात का विश्वास है कि आज हमारे परम पूज्य रविशंकर जी यहाँ आए, रामदेव बाबा इसमें आ गए, अग्निवेश जी जैसे एक चारित्रशील लोग इसमें जो शामिल हो गए, उसका प्रभाव जनता में होगा। हाँ, आज जिन लोगों ने पूज्य रविशंकर जी को देखा नहीं, रामदेव बाबा को देखा नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये पूरी जनता इस लड़ाई में शामिल होगी और एक दिन आज़ादी की दूसरी लड़ाई सफल होगी, ऐसा मुझे विश्वास लगता है। तो मैं इसी बात के लिए आगे ना बढ़ते हुए, हमारी ये लड़ाई जारी हो गई, अभी चलते रहेगी, जब तक शरीर में प्राण है तब तक चलते रहेगी। आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पर जो बातें कर रहे हैं, हमारी पहचान क्या है? हु आर वी? ऑन हुज बिहाफ आर वी एड्रेसिंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस? यहाँ मैं बहुत हम्बली ये कहना चाहूँगा, वी आर हियर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। We represent the civil society. We don't represent any political party. We don't represent any business or industrial house. We don't even represent any section of bureaucracy for that matter or judiciary. हम लोग साफ सिंपल सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कटिंग अक्रॉस रिलीजन, कटिंग अक्रॉस ऑल अदर बैरियर्स, वी आर स्पीकिंग विद वन वॉइस। आज इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि सिर से पानी गुजर चुका है। रोज के हिसाब से कई हजार करोड़ रुपए के स्कैम, घोटाले, स्कैंडल्स बाहर निकल रहे हैं। सो दिस मूवमेंट रिप्रेजेंट्स zero tolerance against corruption. India against corruption means another name is zero tolerance against corruption. Zero tolerance of the people. और इसका मतलब है कि आज के बाद इस आंदोलन के माध्यम से, और स्वामी रामदेव जी महाराज नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने जो आंदोलन छेड़ा और ये कहा कि विदेशी धन हमारा वापस आना चाहिए, 300 लाख करोड़ रुपया, ये जो आंदोलन उन्होंने छेड़ा, मैं समझता हूं कि एक नई शुरुआत हो रही है। और जैसे अन्ना हजारे जी ने कहा, एक आज़ादी की नई लड़ाई शुरू हो रही है। हम लोगों को सबसे बड़ी चीज़ जो लोकपाल बिल हम दे रहे हैं, एक ड्राफ्ट के रूप में दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि जन जन तक ये चीज़ पहुँचे, मीडिया में डिस्कशन के द्वारा ये चीज़ पहुँचे और इसके ऊपर डिबेट हो, ड्राफ्ट को फिर से और नया किया जाए, दूसरा ड्राफ्ट, तीसरा ड्राफ्ट, फिर फाइनल ड्राफ्ट लोगों के सामने, सरकार के सामने जाए। और ये नहीं होना चाहिए हम आउटराइट रिजेक्ट करते हैं, आउटराइट
जो गवर्नमेंट ने अपना ड्राफ्ट बना करके पार्लियामेंट में लाएंगे 1968 से झांसा दे रही है सरकार, 68 से, और आज 50 साल हो गए, आज तक वो बिल कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है कहाँ। तो वो झूठ है, फरेब है, एक स्मोक स्क्रीन है वो, इस प्रकार के बिल ऑलरेडी